یہ گالیاں نکال رہے ہیں ہمیں، یہ گالیاں نکال رہے ہیں ہمیں۔ وہ بھی خوش نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ابھی کل والی گالی کا مسئلہ ختم نہیں ہوا، نئی گالیاں نکالی گئی ہیں، ادھر آپ سن رہے تھے۔ ہیڈ فون لاؤ بھائی جان، ہیڈ فون لاؤ تو تنو ہیڈ فون لا کے اللہ کی قسم مائک نہ چھڈیا جے ہیڈ فون لا کے نہیں میں نہیں آپریشن دے کیبنٹ میں کرنا سر پیسے تو مانگے نوائز کنیکشن والا دن ہے کہ میں اس دن فائنینس جلد کھلا کر سب کچھ ہو جائے گا۔ کیا کی کہہ رہے ہیں؟ وی وانٹ پیس، پیس۔ بولیں خواجہ صاحب، بولیں آپ۔ یہ دہشت گردان تم کسی پاڑنا چاہتے ہو ایسی اجازت نہیں دیا۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پہ آپ سے میں نے اجازت مانگی جب یہ لوگ باہر تھے، جب یہ لوگ جو ہے احتجاج کر کے ہاؤس سے واک آؤٹ کر چکے ہوئے تھے۔ میں ایک ایسے مسئلے پہ بولنا چاہتا ہوں جو سیاسی مسئلہ نہیں ہے، جو کنٹروورشل مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے اوپر کوئی قوم کے کسی بھی گروہ کی یا سیاسی پارٹی کا اختلاف جو ہے ہو۔ یہاں پہ اقلیتوں کو روزانہ قتل کیا جا رہا ہے، مذہب کے نام کے اوپر اس ملک کے اندر اقلیتیں جو ہے وہ غیر محفوظ ہو چکی ہوئی ہیں۔ میں اقلیتوں کے مسئلے پہ بولنا چاہتا ہوں اور یہ لوگ مجھے بولنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ میں ایک نہایت سینسٹیو مسئلے پہ بول رہا ہوں جس کی وجہ سے پاکستان ساری دنیا میں شرمندہ ہو رہا ہے، اور یہ مجھے بول نہیں رہے، یہ اپنے سیاسی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، ہمیں گالیاں دے رہے ہیں۔ لفظ جو ہے یہاں پہ حرام زدگی جو ہے استعمال کیا گیا، آپ نے خود سنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تمہارے باپ کا ہاؤس نہیں ہے، یہ بھی آپ نے سنا ہے۔ میں جب ایک ایسے مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے اوپر بھی یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کوئی مذہبی اقلیت اس وقت محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر جو چھوٹے فرقے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ ایک شرم کی بات ہے، ایک ایسی بات ہے جس پہ پوری قوم کو شرمسار ہونا چاہیے، لیکن ان کو نہ شرم آ جا رہی ہے نہ حیا آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بات سنیں، ہم لوگ ایک ریزولوشن موو کرنا چاہتے ہیں، کہ اس ملک میں اقلیتیں محفوظ ہو سکیں۔ ان کا اس ملک میں رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مسلمانوں کا حق ہے۔ یہ ملک جو ہے کسی ایک اکثریت کا نہیں ہے، یہ ملک جو ہے سارے پاکستانیوں کا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں یا کسی بھی مذہبی جو ہے اقلیت سے ان کا تعلق ہو۔ اس ملک کے اندر اس وقت اقلیتیں، ایوان کے اندر اس وقت اقلیتوں کی نمائندگی ہے۔ ہمارا آئین جو ہے وہ اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے، لیکن عملی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ گروہ جو ہیں وہ کبھی سوات میں قتل کرتے ہیں، کبھی سرگودا میں قتل کرتے ہیں، کبھی فیصل آباد میں قتل کرتے ہیں۔ یہ قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے، شرم کا باعث ہے۔ اور جب اس موضوع پہ پاکستان کے سب سے بڑے ایوان میں اگر بات کی جاتی ہے تو یہ جو ہے اس بات کا جو ہے گلا گونڈ رہے ہیں۔
उस आवाज का गला घूंट रहे हैं ताकि इस मौजू के ऊपर बात ना हो सके। ये अपने जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे। जो ये मसले उठाना चाहते हैं मैं उसका भी जवाब दूंगा, इस हाउस में जवाब दूंगा, लेकिन पहले ये मसला एक ऐसा मसला है जिसके लिए पूरी कौम का इत्तेहाद जरूरी है, मुत्तहिद होना जरूरी है। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। मजहब के नाम पे हमारा मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम मजहब के नाम पे ऊपर खून बहाएं, कत्लेआम करें, बेगुनाह अफराद को जो है कत्ल करें। आज तक जो है जो लोग कत्ल हुए हैं उनके मुतल्लिक कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने खुदा नखास्ता को ब्लास्फेमी जो है कमिट की थी। लोग जाती झगड़ों पे ब्लास्फेमी का बहाना लगा के लोगों को कत्ल कर रहे हैं। ये इस वक्त ऐवान का जो है ये फर्ज बनता है कि मुत्तहिद होके इस बात के ऊपर जो है कोई ना कोई अपने मौक़िफ़ का, मुत्तहिदा मौक़िफ़ का इजहार करे। सारे पाकिस्तान में ये मैसेज जाए कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली इसके ऊपर मुत्तहिद है और इस एक मौक़िफ़ के साथ अपने अक़लीती भाइयों को, अपने ईसाई भाइयों को, अपने हिंदू भाइयों को, अपने सिख भाइयों को, अपने पारसी भाइयों का, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती है। जनाबे वाला, मैं दूसरा मसला जो कल अज़्म से काम का जो एपेक्स कमेटी ने, आपको पता होना चाहिए कि एपेक्स कमेटी जो है आज से 5-6 साल पहले जो है वजूद में आई, जब जो है पेशावर वाला आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ। उसके बाद ये कमेटी बनाई गई, उसमें पीटीआई की भी नुमाइंदगी थी, पीटीआई उसमें पार्टिसिपेट करती रही। आज जो है हम उसकी तरफ जो है एक कदम बढ़ा रहे हैं, उसको दोबारा रिवाइव कर रहे हैं, उसको लेके कबीना में जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हम इस हाउस में भी लेके आएंगे। इस हाउस में इस मौजू के ऊपर डिबेट भी करेंगे। हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिसको सियासी मफादात के का बहाना बना के उस पर्पस को, उस मौजू को जो है निशाना बनाया जा सके। अगर इनका कोई एतराज़ है तो इंशाअल्लाह ताला जब ये मसला इस हाउस में आएगा तो इंशाअल्लाह ताला ये भी उस पर बोल सकते हैं। लेकिन ये लोग जो है अपने कल्चर का जो है, अपनी असलियत का जो है मुजाहरा कर रहे हैं कि इनकी एक्चुअली सियासी औकात क्या है। गाली के साथ सियासत करना चाहते हैं, तशद्दुद के साथ सियासत करना चाहते हैं। और कल की मीटिंग के अंदर इनके खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने ये सारी बहस हुई, उसके सामने ये रिजॉल्व किया गया कि ये इक़दामात उठाए जाएंगे दहशतगर्दी के खिलाफ। आज ये यहाँ पे ये मुजाहरा करके दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी फौज के शोहदा जो हैं उनके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, शहादतों के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं जो दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रही है। ये आज भी 9 मई के मौक़िफ़ से नहीं हटे, आज भी ये 9 मई के ऊपर खड़े हैं। ये कहना कि फौज हमारी है, मुल्क हमारा है, शोहदा हमारा है, ये सब जालसाजी है जनाब स्पीकर, ये सब जालसाजी है। ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले हैं, आने वाले कल भी जो है वो भी 9 मई वाले हैं। इनका मौक़िफ़ नहीं बदला। ये इसका वाकई जनाब स्पीकर, इनका मौक़िफ़ नहीं बदला। ये जब मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैंतरे बदलते हैं, रंग बदलते हैं, तरले करते हैं, पाँव पड़ते हैं, बाप बनाते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे एहतजाज करते हैं। ये देखें, गालियाँ देते हैं, इस हाउस की तज़लील करते हैं, इस हाउस की तज़हीक करते हैं। ये करें बातें, बिजली ये चोरी करते हैं, बिजली बंद करते हैं तो उसमें भी एहतजाज, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हैं उसमें भी एहतजाज। ये सारी बातें मुल्क की इस्लामियत की बातें हैं, सालमियत की बातें हैं।
उसके ऊपर भी खिलाफ है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत के साथ हैं, ना मुल्क के साथ हैं, ना इस ईवान के साथ है, ना आइन के साथ है, किसी के साथ नहीं है। जनाब स्पीकर, ये अपनी असलियत, अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। जो इनकी औकात है ये वो दिखा रहे हैं। वो जो लीडर इस वक्त अंदर है, वो भी रोजाना पैंतरे बदलता था। कभी पूरी एक्सटेंशन, पूरी उम्र की एक्सटेंशन देता था बाजवे को, कभी उसको गालियां देता था, कभी उसके पांव पड़ जाता था। ये इनकी औकात है। इनमें से बहुत से लोग जो हैं हमसे टिकट मांगते थे, मैं उनका सिफारशी था। हमारी क़यादत ने उनको टिकट नहीं दिया, आज गालियां देते हैं। मैं इस हाउस में पूरे कॉन्फिडेंस और एतमाद के साथ आपको कह रहा हूं, इनमें से मैं चेहरे जानता हूं जिन्होंने हमसे टिकट मांगा था कि हमें टिकट दो। जब हमने टिकट ना दिया तो इस पार्टी पे ये चले गए। इनकी औकात ये है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। This house is going to take a break for meet 2:15 again. Thank you. कौमी असम्बली का इजलास जारी था, जहाँ ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे थे और उनकी तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से मुसलसल शोर शराबा किया गया और एहतजाज भी किया गया। ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये कहा जा रहा था कि मजहबी अक़लियतें यहाँ पे महफूज नहीं हैं, हमें ऐसी रेवोल्यूशन लेकर आना पड़ेगी जिससे अक़लियतें महफूज हों। हमारा आइन अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। हमारे लिए ये लम्हा है, फ़िक्रिया है। ये जो मसला उठाना चाहते हैं मैं उसका भी जवाब दूँगा, मगर इस मसले के लिए हम मुत्तहिद हैं।